Hello students, how are you today? Today we are going to do numericals on relative velocity topics. Okay, and बेटे in exam the relative velocity से related numericals आपको अक्सर exam में आ जाते हैं. So let's start first questions that is related with the relative velocity. So we have first question here. A ray is falling vertically downward with the velocity of 30 meter per second and wind is blowing from north to south, okay, with speed of 10 meter per second. Find the direction in which the boy should hold his umbrella to protect himself. Okay बेटे, तो देखिए अब हमारे पास क्या है, दो वेलोसिटीज हैं. एक होगी वेलोसिटी वर्टिकली डाउनवर्ड जो ऊपर से बिल्कुल डाउनवर्ड आ रही है, वो वेलोसिटी किसकी होगी, रेन की. नंबर टू, विंड मूव कर रही है, विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ. ठीक है, वर्टिकली एंड नॉर्थ टू साउथ, सो बोथ आर मेकिंग एंगल 90 डिग्री. तो दोनों का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो एट ए डिग्री 45 के डिग्री होगा. सो लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट. सी दिस वन पार्ट. First of all, you will write the values that is given to you. So, velocity of the rain is equal to 30 meter per second. Velocity of the wind W is equal to 10 meter per second. Now, see this one diagram. In this diagram, you will notice that we are vertically downward. So, this is the diagrammatic part. First of all, you need to draw the directions of north, south, east and west, and vertically upward and downward. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ. इस दोनों के परपेंडिकुलर्स होंगे ईस्ट और वेस्ट, और ये पार्ट जो होगा वर्टिकली अपवर्ड एंड वर्टिकली डाउनवर्ड. सो द वेलोसिटी ऑफ द रे वर्टिकली डाउनवर्ड, सो फ्रॉम O to A, O to A is equal to velocity of ray, velocity of ray. OB represents velocity of wind. Clear बेटे? So velocity of wind moving from O to B, W. Velocity of rain from O to A, that is VR. So which is, if the wind is blowing, then वो जो इसकी वेलोसिटी आएगी विंड का, तो बेटे इन दोनों की जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी टुवर्ड्स दिस साइड, दोनों का रिजल्टेंट अक्रॉस दिस. सो दिस वैल्यू v इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. ओके, तो इसका जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगा विद एंगल थीटा. तो डायरेक्शन हमने फाइंड करनी है इस पे. व्हाट द क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो डायरेक्शन हमें कौन देता है, tan थीटा. तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस. परपेंडिकुलर वैल्यू इज दिस वन, AC ओवर OA. OC देखिए AC का वैल्यू कितना आएगा, OB. AC इज इक्वल टू OB which is equal to velocity of the wind. Velocity of wind is 10 meter per second. ठीक है बेटे, तो वेलोसिटी ऑफ विंड का आ जाएगा. सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, देन यू विल गेट द वैल्यूज हियर. सो tan थीटा इज इक्वल टू 0.33. इज दिस इज द डायरेक्शंस ऑफ द winds. Okay, Rainbow. Let's try another questions. So let's start one more questions related with the relative velocity. A ray is falling vertically with the speed of 25 meter per second. So rain is falling vertically downward with the speeds of 25 meter per second. A cyclist is moving along north to south with 10 meter per second. What is the apparent speed and directions of rain? तो जो साइकिलिस्ट है उसको रेन की जो रिलेटिव वेलोसिटी है, अपेरेंट जो उसको लग रही है, वो कितनी लगेगी. ठीक है, एंड यू आल्सो हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ डायरेक्शंस ऑफ रेन. अब लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे द गिवन वैल्यूज के वैल्यूज लिखेंगे. फर्स्ट थिंग इज दैट वेलोसिटी ऑफ द रेन इज VR. कितनी है वैल्यू बेटे, 25 मीटर पर सेकंड. सेकंड इज वेलोसिटी ऑफ द साइक्लिस्ट VC which is 10 meter
पर सेकेंड। अब हम देखते हैं इसको विद द डायग्राम। लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल द साइकिलिस्ट इज मूविंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। We have north, here is south, east and west, and this part is vertically upward and this part is vertically downward. So the rain is falling vertically downward. So O to A represents the velocity of the rain, VR. Clear? अब देखिए हमारा जो साइक्लिस्ट है, he is moving from north to south. If he is moving from north to south along this section, तो बेटे he is moving from north to south और ये ऊपर है तो उसकी जो relative velocity लगेगी is along this directions, ठीक है। तो क्या आएगा O to B वैल्यू आएगा इसका VC। तो अगर हम B इसके ऑपोजिट लें तो OB या फिर OB डैश में क्या आएगी वेलोसिटी इसकी नेगेटिव, क्योंकि डायरेक्शन हम ऑपोजिट ले रहे हैं। अगर O से B ले तो हम जा रहे हैं नॉर्थ टू साउथ, डायरेक्शन पॉजिटिव। अगर हम साउथ से नॉर्थ जाएंगे तो उसका वेलोसिटी वेक्टर क्या आएगा नेगेटिव, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन। फ्रॉम O टू B वेलोसिटी वेक्टर इज नेगेटिव -VC। ओके, अब वेलोसिटी ऑफ दिस एंड दिस दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बनेगा v एंड दिस रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता है बेटे, दैट इज vr प्लस मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ सेकंड माइनस vc, जिसको हम vr माइनस vc भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारे पास इसका रिलेटिव वेलोसिटी। देखिए इफ v इज द वेलोसिटी ऑफ रेन relative to the cyclist, then v is equal to vr minus vc। तो अगर हम इसकी वैल्यूज को वेलोसिटी को फाइंड करें इन मैग्नीट्यूड, बेटे मैग्नीट्यूड में हम नेगेटिव नहीं लेते, हम उसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो अपीरेंट स्पीड ऑफ रेन इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू v इज इक्वल टू √pr² प्लस vc²। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें माइनस मान लीजिए अगर आप यहाँ पे बेटे -VC का स्केयर करोगे तो वो नेगेटिव का स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी गेट दिस वैल्यू, द अपीरेंट स्पीड ऑफ रेन इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 26.92 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायरेक्शन हम कैसे निकाल लेते हैं, डायरेक्शन वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ 10 मीटर। सो इसकी वेलोसिटी आ रही थी तो वो उसको स्ट्राइक कर रहा था, तो उसको जब स्ट्राइक करते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको अपोजिट डायरेक्शंस में हिट कर रहे हैं। तो इफ दिस वेलोसिटी ऑफ रेन विद द साइक्लिस्ट एंड मेकिंग एंगल बीटा, tan बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, AC is OA, perpendicular is AC over OA। We will substitute the value 0.4। So this is the answer of the questions in which we have relative velocity। क्लियर बेटे? तो ऐसे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में आ जाते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट वन मोर क्वेश्चंस। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद द रिलेटिव वेलोसिटी। बेटे रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आ जाता है, एंड लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बेटे वैल्यूज है, टू रेलवे ट्रैक आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट directions, train A moves with 45 मीटर पर सेकंड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो बेटे दो रेलवे ट्रैक है, ठीक है, एक उसकी जो डायरेक्शन कैसी है, वन इज अलोंग ईस्ट, अनदर इज अलोंग वेस्ट। तो एक ट्रेन है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है बेटे, ठीक है। एक ट्रेन पे का एक ट्रैक पे जो ट्रेन है उसका नाम रख दिया वन ट्रेन, दैट इज ट्रेन ए इज मूविंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट टू ईस्ट, और उसकी स्पीड कितनी बेटे 45 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन बी है दैट इज आल्सो मूविंग उसके ऑपोजिट ट्रैक में आ रही है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ट्रेन ए मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ट्रेन बी मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, और ट्रेन बी का स्पीड इज आल्सो गिवन 60 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन आपको फाइंड करना है रिलेटिव स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए।
रिलेटिव स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन बी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए। तो हमें पता है बेटे क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी। अब स्पीड ऑफ जब हम बी ट्रेन का करेंगे तो देखिए जो ट्रेन बी है वो ट्रेन ए के ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव कर रही है। जो ट्रेन फर्स्ट होगी ना वो उसको हम पॉजिटिव मान लेंगे, तो जो सेकंड होगी उसको, अगर वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है तो साइन उसका कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। So VB is equal to 60, but if we will take it as negative 60 because the motion of the train B is in opposite directions. Opposite directions है तो वैल्यू बन गया। अब फाइंड करनी है relative velocity of VB with respect to A. So VB into VBA. Relative velocity of B with respect to A, relative velocity of B minus relative velocity of A. तो B का वैल्यू कितना था, -60 माइनस 45 वैल्यू आएगा -105 मीटर पर सेकेंड। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट डायरेक्शन ऑफ ट्रेन बी इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ए ट्रेन। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में बोला है रिलेटिव स्पीड ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो बेटे ग्राउंड का तो मोशन जीरो होता है, तो ग्राउंड तो मूव ही नहीं करती, ट्रेन बी तो मूव कर रही है, ग्राउंड मूव नहीं करती। सो इट मींस दैट वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड इज जीरो। तो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी ट्रेन, तो जी बी आ जाएगा। तो ग्राउंड का वेलोसिटी जीरो माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, तो बी का वैल्यू तो ऑलरेडी हमारे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये बन गया हमारे पास +60 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे जिसमें हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन, बाइक, कार्स, ऐसे क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो आप and now do the practice of these questions and try some more questions. If you still have any problem, just contact me on WhatsApp number. Okay. Next numerical we will do on next week. Thank you.